क्या क्या बताया था मैंने नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट में आपको? हाँ, नेशनल इनकम जब निकालना है हमें, तो वी हैव डिस्कस डोमेस्टिक इनकम. व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? हाँ, हाँ, and third is Balpreet, mixed income. So domestic income is what? It is the income through domestic products being produced in within economic territory, right? So these are the goods and services. These are the income from goods and services which have been produced in economic territory of a country. So that is domestic income. So we have three components of domestic income. First is COE, second is OS, and third is MI. ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है? रीड किया था टॉपिक? ओके, so what is factor cost? What is factor cost? Cost of all the factors. Yes, what is factor cost? Online students, what is factor cost? Ma'am, it is the cost of all factor services which are rendered by the household. Good. Okay, now the next is factor payment and transfer payment. Factor payment or income and transfer payment and income. What are factor payments and incomes? You know that this is the payment that a person will receive, right? And one will pay it, another will receive it. So these are based on factor services. So whatever services have been rendered by the household sector, same producer will pay to them and consumer will receive that amount. So these are the factor payments or factor incomes. Clear? So factor payments क्या है? जितनी भी factor services हाउसहोल्ड सेक्टर रेंडर करता है, किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को. तो एक के लिए पेमेंट होगी, प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए वो पेमेंट है, एंड सेम विल बी इनकम फॉर द हाउसहोल्ड सेक्टर, राइट? नाउ व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर इनकम? सुना है कॉन्सेप्ट कभी बच्चों? ट्रांसफर पेमेंट एंड इनकम? नो. देखो, these are one-sided transactions. These are one-sided transactions, or we also call it unilateral transfers. Unilateral transfers. ठीक है? These are like gifts. These are gifts. Charity, old age pension, any kind of scholarship. जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता, ठीक है? ये किस टाइप की पेमेंट्स और इनकम्स है बच्चों? जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं होता, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज यूनिलेटरल. यूनि मींस वन. सो दीज आर वन साइडेड ट्रांजैक्शंस. मैंने बलप्रीत को गिफ्ट दिया, तो कोई फ्लो तो नहीं हुआ, कुछ प्रोडक्शन तो नहीं हुई, तो ये क्या हो गया? यूनिलेटरल. ठीक है? मैंने साथी को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की स्टडी में, तो ये क्या हो गया? यूनिलेटरल. यूएस ने इंडिया को फ्लड विक्टिम्स के लिए हेल्प प्रोवाइड की है, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिलेटरल. ठीक है? तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट्स व्हिच आर वन साइडेड ट्रांजैक्शन. क्लियर?
यहाँ पे किसी भी टाइप की, दीज आर ओनली द रिसीप्ट, ये सिर्फ रिसीप्ट है। यहाँ पे आप कहीं कुछ पे नहीं कर रहे हो, कोई सर्विस रेंडर नहीं कर रहे हो, ये अर्निंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये सिर्फ रिसीविंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दिस इज अर्निंग कॉन्सेप्ट एंड दिस इज रिसीविंग कॉन्सेप्ट। क्लियर टू एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है कॉन्सेप्ट? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. So factor payments, जो factor services में there will be flow of goods and services, but in this case of transfer payment there will be no flow of goods and services. This is earning concept and this is only receiving concept. ठीक है, कोई गिफ्ट है, कोई चैरिटी है, ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, जहां पे भी आप फ्री काम कर रहे हो, जहां पे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो एक्सचेंज में, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट और इनकम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज very important topic, how to solve your basic numericals। अच्छा, उससे पहले एक नफिया वाला कॉन्सेप्ट रहता है ना बच्चों, नफिया नहीं किया अभी हमने। we have done FC and MT, MT और FC का डिफरेंस कर लिया, ग्रॉस और नेट का कर लिया था, there is a depreciation, लास्ट रह गया था डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होगी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल हो गया बड़ा स्केल। So if domestic income is given and we have to calculate national income, in that case छोटे से बड़े पे जाना है, so there will be a term which will be added to this, this is NAFIA, it will give you national income। NAFIA I told you it is net factor income from abroad। Now what is this net factor income from abroad? क्योंकि domestic income हम लोग कर चुके हैं, नेशनल इनकम आपको पता है, जब नफिया ऐड होता है तो हमें क्या मिल जाएगी, नेशनल इनकम मिल जाएगी, राइट? नाउ व्हाट इज दिस नफिया, हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? नफिया इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, दो टाइप की इनकम है बच्चों ये। फर्स्ट इज factor income earned by resident of country from ROW। ठीक है, second is factor income earned by non-resident from domestic country। ठीक है, इसे नोट करो, फिर दिखा देते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट बोर्ड विजिबल है? बच्चों क्लैरिटी है? मैम मैम एंड में दोनों इंक लाइट होगी बहुत ज्यादा, तो क्लियर पढ़ा नहीं जा रहा, आप डिक्टेट कर दो। अच्छा, पढ़ा नहीं जा रहा, लाइट हो गया बहुत ज्यादा। वो इंक लाइट हो गई है बहुत ज्यादा, ऊपर तो डार्क है इंक, ठीक है, नीचे लाइट हो गया। blue color marker it is actually light। Okay, so I'll dictate it। First is factor income earned by resident of country from ROW। ROW is what? Rest of the world। ठीक है, factor income earned by resident of country from ROW। ROW is rest of the world, and in second part I have written factor income earned by non-resident from domestic country। I'll write it by black. See, in short, this is factor income received and this is factor income earned, paid, sorry। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हम लोग ये यूज करते हैं, ये इनकम रिसीव्ड इनकम होती है और ये इनकम पेड इनकम होती है। देखो इधर बच्चों, फैक्टर इनकम रिसीव्ड, अगर कोई रेजिडेंट
बाहर जाके काम कर रहा है, राइट, और वो इनकम अर्न करके इंडिया में ला रहा है, तो वो इनकम इंडिया के लिए क्या हो जाएगी? रिसीव्ड इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यही हुआ ना कि मैं बाहर जाके काम कर रही हूँ, मैं बाहर जाके पढ़ा के आई हूँ, कुछ लेक्चर्स दे के आई हूँ 6 मंथ्स के अंदर, एंड whatever I have earned, I have come back with the money in India, right? So that income is received from rest of the world. Clear? Now this income, अगर कोई बाहर का पर्सन आ रहा है, अगर कोई बाहर से आ रहा है और यहाँ पे आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, और वो इनकम हम इंडिया वाले उसको पे कर रहे हैं, हम इंडिया वाले क्या कर रहे हैं? उसे पे कर रहे हैं। तो whatever we have received from rest of the world and whatever we have paid to rest of the world, इसका net effect will give you नफिया। ठीक है, जो हमने रिसीव किया, जो हमने पे किया, उसे जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नफिया। क्लियर बच्चों? क्लियर है? नफिया इज व्हाट? फैक्टर इनकम रिसीव माइनस फैक्टर इनकम पेड। हाँ बलप्रीत, क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, सो जितना भी आप लोग रिसीव करोगे उसमें से हम लोग जितना हमने पे किया है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ नफिया कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अगर आपकी फैक्टर इनकम रिसीव ज्यादा है फैक्टर इनकम पेड से, so your नफिया will be positive. But if received income is less than factor income paid, then your नफिया will be negative, right? अगर हमने रिसीव ज्यादा किया है और पे कम किया है तो ऑब्वियसली इनकम क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर हमने रिसीव कम किया है और पे ज्यादा किया है तो हमारी इनकम क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। मान लो यहाँ पे हमने 1 लाख रिसीव किया एंड वी हैव पेड 60,000, राइट? तो हमारी 40,000 क्या आ गया? नफिया आ गया। इस केस में रिवर्स हो गया, 1 लाख वी हैव रिसीव्ड बट वी हैव पेड 1,20,000. So in that case, नफिया will be negative 20,000. नफिया will be negative 20,000, right? Sometimes question में directly नफिया given होगा, but sometimes दोनों components दिए होंगे इसके, receive and pay दोनों दिए होंगे, sometimes एक ही दिया हो, like it will be written in the question factor income या net factor income paid to abroad. अगर टू अब्रॉड होगा और इनकम पॉजिटिव दी हुई है, यू हैव टू कंसीडर इट विद अ नेगेटिव साइन। न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, मैं तब दोबारा बताऊंगी एक बारी। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यहाँ फ्रॉम की जगह क्या लिखा हुआ है? टू अब्रॉड। मान लो नफिया दिया हुआ है 10 करोड़, बट कुछ नहीं दिया हुआ, साइन नहीं दिया हुआ, और यहाँ पे ये टू वर्ड है, तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये 10 करोड़ हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, पॉजिटिव नहीं लेंगे। क्लियर दोनों को? ये बच्चों क्लियर है सबको? जब न्यूमेरिकल्स में आएगा ये पोर्शन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, बट रिमेंबर दिस, इट इज ऑलवेज रिसीव्ड माइनस रिसीव्ड। अगर फ्रॉम है तो वो पॉजिटिव है नेगेटिव है उसे एडिटिव लेना, राइट? अगर वो नेगेटिव दी होगी और फ्रॉम वर्ड दिया हुआ है, इट मीन सेकंड वाला केस हो गया, ठीक है, जहाँ पे हमने रिसीव कम किया हुआ है और पे ज्यादा किया हुआ है। लेकिन अगर फ्रॉम दिया हुआ है, नफिया ही लिखा हुआ है और पॉजिटिव है, तो मतलब फर्स्ट वाला केस है जहाँ पे रिसीव ज्यादा और पे कम, ठीक है? ये नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। ओके, कर लिया आप दोनों ने? कर लिया वो? Now we have aggregate of national income.
whenever it is written domestic income, it means you have to find NDP at FC. Whenever it is given find national income, then you have to calculate NNP at FC. ठीक है, अभी इसकी फुल फॉर्म्स बताती हूँ. Then we have GDP at MP. We have NDP at MP. GDP at FC, NDP at FC, NNP at MP. Next, GNP at MP. So these are the aggregates of national income which we are going to find in our numerical problems. You know the full form of NDP? Net domestic product at factor cost, right? Footnote में it will be always mentioned. You have to find factor cost. You have to find market price. Question में already given होगा. NNP, net national product at factor cost. ठीक है, इसे प्लीज ध्यान में रखना कि अगर डोमेस्टिक इनकम, समटाइम्स क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा होगा फाइंड डोमेस्टिक इनकम, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि डोमेस्टिक इनकम में निकालना गया. डोमेस्टिक इनकम में एनडीपी एट एफसी ही कैलकुलेट करना है. ठीक है, नेशनल इनकम में एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना. हाँ बेटा बोलो. मैम एक बार एफसी दोबारा समझाना. क्या दोबारा समझाऊं? एफसी. यस मैम, समझ नहीं आया वो है क्या. दोबारा बताती हूँ बेटा, अभी बता रही हूँ. ठीक है, जीडीपी के केस में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. इफ यू वांट यू कैन राइट द फुल फॉर्म. जीडीपी एट एफसी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. एनडीपी एट एफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है, याद रहेगा. ओके, फर्स्ट फैक्टर कॉस्ट. First, what is factor cost? First, in second chapter, we have studied circular flow of income. There was a producer sector in two-sector economy, and we have consumers. अब प्रोड्यूसर क्या करता है बच्चे? कंज्यूमर सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज लेता है. इन फैक्टर सर्विसेज के लिए प्रोड्यूसर ऑलवेज कंज्यूमर को क्या देता है? फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम. इसके लिए इनकम हो जाएंगी, इसके लिए पेमेंट हो जाएंगी. बेटा जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब कंज्यूमर प्रोड्यूसर को देता है, जिस कॉस्ट पे देता है, मतलब जो पेमेंट वो लोग उसको करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट. So these are the incomes received by consumer sector for rendering their factor services to producer sector. Clear first? यस मैम. ठीक है, जो भी मान लिया, मैंने जो उस दिन भी बताया था कि अगर हमने पोटैटो चिप्स की फैक्ट्री लगाई है तो यू कांट गेट पोटैटो फ्रॉम एवरीवेयर. मतलब खुद से घर से नहीं ला सकता और खुद की लेबर नहीं अप्लाई कर सकता, खुद ही पैकिंग में नहीं इन्वॉल्व हो सकता. तो ये हम किस पे डिपेंडेंट है? कंज्यूमर सेक्टर पे, हाउस होल्ड सेक्टर पे. तो उनसे हम ये सारी फैक्टर सर्विसेज लेते हैं. अब इन रिटर्न उन्हें कुछ देना भी होगा, तो जो हम पेमेंट उन्हें करते हैं दैट इज फैक्टर कॉस्ट. अब प्रोड्यूसर के लिए फैक्टर पेमेंट हो गई, लेकिन कंज्यूमर उसे रिसीव करते हैं तो उसके लिए फैक्टर इनकम हो गई. क्लियर? यस मैम. ओके, एनी अदर क्वेरी, एनी अदर डाउट? Nothing? Now, the basic concept of calculating all these aggregates. अब इस कॉन्सेप्ट को ये न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से समझना. कोई डाउट हो उस टाइम बोल देना. हाँ, बट इसी को ही फॉलो करके आपने अपने सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं.
अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करोगे, समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली माइंड में कि हम यहाँ से यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये चेंजेस कर रहे हैं, सिर्फ 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं आप लोगों को ना इस पैटर्न को फॉलो करने में, बट कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नोन साइड सुन लेना, आराम से लिखना बाद में। अननोन साइड मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में 3 फॉर्मूलाज करवाए थे। फर्स्ट था ग्रॉस और नेट का डिफरेंस। क्या है इन दोनों के बीच का डिफरेंस? हाँ, तो अगर ग्रॉस कैलकुलेट करना है तो नेट क्या करेंगे? प्लस डेप्रिसिएशन। नेट निकालने के लिए माइनस करेंगे ना, अगर नेट निकालना है तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, उल्टा हो जाएगा ना इसका। सेकंड हमने किया था बच्चों फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस बड़ा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है ना। अगर आपको छोटे से बड़े पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो दैट एडिशन इज नेट। थर्ड मैम आप शायद से म्यूट हो गए हो। ओके, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम प्लस नफीया। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और याद रखना, थोड़ी सी क्रेडिट टर्म है बट अगर याद रखना है तो क्या ही फर्क पड़ता है। देखो डोमेस्टिक इनकम छोटी है, हमें किस पे जाना है? नेशनल इनकम पे। तो जब भी छोटे से बड़े पे जाना है हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, फैक्टर कॉस्ट विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन है, लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो आउटसाइड दिस साइड, यानी मार्केट क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो छोटे से बड़े पे जाना है, फिर से क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ग्रॉस जो है वो क्या है? सबका कैलकुलेटेड पार्ट है, तो नेट क्या हुआ? कम हुआ ना, तो नेट वाला पोर्शन कम है और ग्रॉस क्या है? बड़ा पोर्शन है। तो अगर छोटे से बड़े पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस। ठीक है, ये समझ आ गया बच्चों सबको? क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर Yes, है? ma'am. ओके, नाउ अब आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टर्म गिवन होगी। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच साइड इज गिवन, मतलब दैट विल बी आवर नोन साइड। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है जीडीपी एंड एफसी, ये गिवन है, एंड वी आर सेइंग कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी। दिस इज गिवन and this to find. Now this is the known side and this is your unknown side. Always write known side LHS and unknown side RHS side, right? तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ GDP at FC. It is given. We have to find NP and MP. ठीक है, अब ध्यान से सुनना, हमने फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रॉस। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएसपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयर करेंगे। फर्स्ट है ग्रॉस, इसका फर्स्ट है नेट। हमने ग्रॉस से नेट पर जाना है, ठीक है?
समझ आया? जिस साइड मैं लेके जा रही हूँ वो एरो वही बनाना है आप लोगों ने कि हमने नोन साइड से अननोन साइड कैलकुलेट करनी है। तो ग्रॉस से नेट पे जाना है। अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या? डेप्रिसिएशन। तो माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next is domestic and its next is national. ठीक है? अब हमने डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना। What is the difference? नफिया, अब डोमेस्टिक छोटा है, छोटे से बड़े पे जाना है तो नफिया क्या हो जाएगा? प्लस। ओए प्लस, हाँ नफिया, नफिया क्या कर दिया? प्लस। ठीक है? प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इनका कोई रोल नहीं होता। ठीक है? तो इन्हें मैं कैंसल अभी करके दिखा रही हूँ, एवरी टाइम मत करना, इसका कोई रोल नहीं होता। वी विल नॉट टच इट। नेक्स्ट वी हैव फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अब हमें इस फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक जाना है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? इट्स नेट। फैक्टर कॉस्ट छोटा है, मार्केट प्राइस बड़ा है, तो छोटे से बड़े पे जाना है तो प्लस क्या करेंगे? नेट। ठीक है? यहाँ तक क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम इशिका बोलो। थोड़ा सा रिपीट कर दो, नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा है यहाँ पे। बोर्ड भी विजिबल नहीं था पहले। अच्छा अभी विजिबल है बोर्ड? बोर्ड यस मैम अभी तो है। इशिका मैं रिपीट कर रही हूँ। ये 3 फॉर्मूला समझ आ गए थे इशिका? तो ये वाला पार्ट समझाया था नो मैम विजिबल ही नहीं था कुछ भी। ओके। तो हमने लास्ट क्लास में इशिका 3 फॉर्मूला किए थे, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का, राइट? ग्रॉस और नेट में डेप्रिसिएशन का डिफरेंस था, आई टोल्ड यू। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में नेट का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे नफिया का डिफरेंस था। नफिया अभी भी डिस्कस किया मैंने क्लास के अंदर। अब देखो मैंने तुम्हें बताया डोमेस्टिक इनकम छोटी है, डोमेस्टिक इनकम विद इन टेरिटरी है और नेशनल इनकम बड़ी है। तो जब भी हमें छोटे से बड़े पे जाना है हमें प्लस करना पड़ेगा इनके बीच का कंपोनेंट। तो यानी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो आपको नफिया क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्लियर इशिका? यस मैम। और फैक्टर कॉस्ट, ये फैक्टर कॉस्ट है बेटा। फैक्टर कॉस्ट विद इन फैक्ट्री होता है, विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन है, मार्केट प्राइस बड़ा है। तो अगेन छोटे से बड़े पे जाना है तो इनके बीच के कंपोनेंट को प्लस करना पड़ेगा। तो यानी नेट क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देन वी हैव ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस में पूरा एक ग्रैंड टोटल आता है टर्म्स का, तो वो बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। और नेट मतलब नेट इफेक्ट पता लग रहा है ना कि कुछ सम टाइम कुछ चीजें हमें माइनस करनी है। तो नेट छोटा हो गया और ग्रॉस बड़ा हो गया। छोटे से बड़े पे जाना है तो इनके बीच का कंपोनेंट क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ये तीनों फॉर्मूला क्लियर हो गए इशिका? यस मैम। इनके रिवर्स भी, इनका वाइस वर्सा हम लोग यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। अब देखो इशिका मैंने बताया था इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए वी शुड हैव नोन साइड एंड अननोन साइड। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। एक नोन होगा और एक अननोन होगा। मैंने एज्यूम किया कि जीडीपी एंड मैम नोन साइड और अननोन साइड मतलब गिवन? known side will be given in the question और unknown side they will ask कि find it this unknown side. Okay. ठीक है? तो I am assuming GDP at HC it is the known side कि मैं मान के चल रही हूँ कि क्वेश्चन में मुझे GDP at HC given था and they are saying find NNP at NP net national product at market price find out करना है। अब बच्चे हम ना एक एक चीज का कंपैरिजन करेंगे, एक एक टर्म का। एक अल्फाबेट जी है और एक अल्फाबेट एन है। मैंने इनकी फुल फॉर्म्स आप लोगों को तभी बताई थी सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो ग्रॉस पहला है जी, जी स्टैंड फॉर ग्रॉस और इसका पहला है एन, एन स्टैंड फॉर नेट। हमने क्या करना है इशिका?
जब भी नोन साइड गिवन है हमने अननोन साइड तक एरोज लेके जाने हैं। तो ये मेरा ग्रॉस स्टार्ट हुआ, ग्रॉस को मैंने फर्स्ट टर्म से कंपेयर किया, दैट इज नेट। तो मैं को ग्रॉस से नेट पे जाना है। अब बताओ ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है मतलब बड़े से छोटे पे जाना है। तो डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है इसी का फर्स्ट पार्ट? यस मैम, यस मैम। सेकेंड इज डोमेस्टिक और इसका सेकेंड है नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, जिस साइड मैंने एरो लगाए हैं उसी साइड एरो लगाना, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, इधर लगा दिया, एक बार इधर लगा दिया, एक बार इधर लगा दिया, जो अननोन साइड है एरो वहीं तक जाएंगे आप लोगों के। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक एक छोटा कॉन्सेप्ट है, नेशनल बड़ा है। तो हमें इनके बीच का कंपोनेंट है नफिया, नफिया को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बेटा सेम होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, दे विल रिमेन द सेम। नेक्स्ट इज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। अब मैंने बताया था फैक्टर कॉस्ट छोटा है, मार्केट प्राइस बड़ा है, तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए प्लस कर देंगे नेट, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? यस मैम। देख लो अच्छे से, आप नोट करो इसे। अभी आगे करना है तो पहले इसे नोट करो। बच्चों ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसे ये समझ आ गया ना वो आगे फुल फ्लैश नेशनल इनकम पे न्यूमेरिकल्स कर सकता है। बट अगर इस पे होल्ड नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं समझ आएगा। मैम डन। हाँ ओके बेटा, इस पे होल्ड का सबसे जो बेसिक फॉर्म है वो यही है। बाकी तुम इसे जैसे मर्जी याद कर सकते हो। आई गारंटी यू कभी ना कभी क्वेश्चन गलत करोगे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे, बट अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन करोगे कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। Srishti, are you present today? मैम आपने अभी कुछ समझाया तो नहीं था? नहीं अभी कुछ नहीं समझाया फर्स्ट। ओके। Srishti आज तो नहीं है क्लास में। Heetal, you were absent yesterday बेटा। Heetal, you missed your topic बेटा, be regular in the class। डन हो गया सबका? अभी क्वेश्चन ओवर नहीं हुआ, वन पार्ट इज लेफ्ट। नेक्स्ट इज आफ्टर दिस स्टेप वी हैव टू मेक अ क्रॉस। अब इस क्रॉस में वो NNT/MP इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ये GDP विद ऑल दीज कंपोनेंट्स जो है एज इट इज फॉर्म में इस साइड आ जाएगी। मतलब ये RHS will become LHS now and LHS will become RHS। तुमने कुछ नहीं करना, ये करने के बाद एक क्रॉस मारना है, मतलब क्रॉस नहीं मारना, ये सिर्फ तुम्हें शो करने के लिए बताया है। तुम्हें याद होना चाहिए ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे GDP at FC और with all these adjustments minus depreciation plus NAFIA plus NIT net। Now this is your formula to calculate NNT at MP when GDP at FC is given। So no need to memorize all the formulas, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, सारे क्वेश्चन होते रहेंगे। अदरवाइज कितने कितने फॉर्मुलास याद रखोगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है, अभी समझाते टाइम लग रहा है, जब तुम 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे ना उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसको यहाँ तक लेके गए, ये प्लस किया माइनस किया, देन उनकी साइड चेंज की और सेम एडजस्टमेंट ट्रांसफर कर दिया। अब देखो NNT/MP हमें कैलकुलेट करना था, GDP गिवन था क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन, NAFIA और नेट ये भी क्वेश्चन में गिवन होंगे। कब प्लस करना है कब
माइनस करना है इस फॉर्मूले की हेल्प से तुम्हें हमेशा पता लगेगा, अदरवाइज सारे फॉर्मूलाज याद करना, क्रैम करना, इट्स नॉट पॉसिबल। मैम जो अननोन है वो हमने एक साइड रखना है और जो भी नोन है वो हाँ बेटा, ऑलवेज रिमेम्बर अननोन राइट साइड पे आएगा और नोन जो है आपका वो लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है। मैम जो हमने फाइनल फॉर्मूला जो बनाया है हाँ जी, वो मैं कह रही हूँ कि अननोन वाला तो एक साइड रहेगा जो निकालना है और बाकी इक्वल्स टू के बाद वो सारा नोन वाला आएगा ना। हाँ बिल्कुल, देखो क्रॉस में आ गया ना, ये पूरी टर्म उठाई यहाँ आ गई, इस टर्म के साथ सारी एडजस्टमेंट इधर आ गई, ओके ठीक है। यस मैम। ओके, नाउ इन दिस वे मैं एक तो तुम्हें सिर्फ टर्म्स दे रही हूँ, अभी न्यूमेरिकल नहीं स्टार्ट कर रहे, तुमने सिर्फ फॉर्मूला बनाना है और कुछ नहीं करना। ये कर लिया ना नोट सबने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लिया नोट? यस मैम। ओके, now NNP at NP is given. You have to calculate GDP at FC. ठीक है, कैलकुलेट करो जल्दी से। प्रियंका मैम, मैम शेयर करना पेज। Okay, ma'am. हो गया? हुआ नहीं? कर दी मैम। ओके मैम, थैंक यू। डन बच्चों? Yes, ma'am. यस मैम। यस, फर्स्ट टेल मी योर फॉर्मूला बच्चे। फर्स्ट इकट्ठे नहीं लिखा मैम, एक मिनट। इकट्ठे लिखना बेटा जल्दी से, ये तो ना कि सिर्फ टेबल शो कर दिया उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। बच्चों किसी को कोई डिफिकल्टी फॉर्मूला फ्रेम करने में, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बच्चों? हो गया मैम। हाँ, टेल मी योर फॉर्मूला फर्स्ट। मैम जीडीपी एफसी इक्वल्स एनएनपी एमपी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस नेट। नफिया प्लस होगा कि माइनस होगा स्पर्श? तुम नेट से Minus. डोमेस्टिक पे जा रहे हो, हाँ बड़े से छोटे पे जा रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा ना। मैम माइनस ही बोलो। प्लस बोला था तुमने? मैम माइनस। चलो ठीक है, माइनस। ओके, रीड क्वेश्चन नंबर 1। रीड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द असाइनमेंट प्लीज। बच्चे क्वेश्चन रीड करिए ना, मुझे असाइनमेंट दे देना। Okay, one more thing. Write some name for depreciation. Depreciation के कुछ नाम लिखो। First है current replacement cost. Current
replacement cost. Second is consumption of fixed capital. Consumption of fixed capital. अब समटाइम्स तुम्हें क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की बजाय इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन ये दो पूरी स्टेटमेंट आ सकती हैं. करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इट इज आल्सो डेप्रिसिएशन. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट इज आल्सो डेप्रिसिएशन. राइट? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज calculate NDP at FC. So we know that our unknown side is NDP at FC. Now they have given GNP at MP. तो known side क्या हो गई? GNP at MP. अब देखो तुम्हारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, तुमने क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है. तुमने क्या करना है? known side unknown side आइडेंटिफाई कर ली. अब अपने चेंजेस करो. ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन. नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, माइनस नफिया. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, माइनस नेट. ठीक है. अब एनटीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नफिया एंड माइनस नेट. अब बस क्वेश्चन देखो और वैल्यूज डाल दो, खत्म हो गया काम. जीएनपी कितना है? 16,000. Here we have given depreciation. Depreciation is 1,000. Okay. अब देखो क्वेश्चन को रीड करना. क्या तुम्हें NIT दिया हुआ है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है क्वेश्चन में. मैंने तुम्हें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला बताया था, IT माइनस सब्सिडीज. तो तुम चाहे तो यहाँ डायरेक्टली कर सकते हो, फॉर्मूला लिख लो IT माइनस सब्सिडी, और तुम चाहो तो इसे अलग से शो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. ठीक है. तो हम लोग ये फॉर्मूला लिख दिया. आई विल इवैल्यूएट द वैल्यूज हियर. नेक्स्ट वी हैव नफिया. नफिया देखो बच्चों डायरेक्टली गिवन नहीं है. दे हैव गिवन ओनली वन कंपोनेंट ऑफ नफिया, दैट इज फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड. हम लोग नफिया कैसे निकालते हैं? फ्रॉम माइनस 2, यही करते हैं ना. तो फ्रॉम दिया हुआ है 1400, लेकिन 2 वाली टर्म मिसिंग है, तो विल अज्यूम इट 0. अब फिर से वैल्यूज डाल दो. 16,000 माइनस 1,000 माइनस 1400. IT कितना है? 1300 एंड सब्सिडीज इज 1200. तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया 100. ठीक है बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? मैम. हाँ बेटा बोल. मैम IT माइनस सब्सिडीज नेट का फॉर्मूला है. हाँ, IT इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज मैंने लास्ट क्लास में बताया था बच्चे. हाँ, तो ये नेट का फॉर्मूला है. ठीक है. $13,500 आंसर आ. क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो. मैम NIT कैसे निकालना था? IT माइनस सब्सिडीज. हाँ बोलो. मैम NIT IT माइनस सब्सिडीज है ना, हाँ इनडायरेक्ट बेटा. टैक्स. यस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी. क्लियर है बच्चों क्वेश्चन सबको? Yes, ma'am. बस ये फॉर्मूला अपने आप याद रखना, ये फ्रेमिंग करनी है, उसके बाद कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा. तो लेजी मत हो जाना कि इसको करने में टाइम लग रहा है तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं. कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों प्लीज पूछते रहना. फर्स्ट टाइम कर रहे हो न्यूमेरिकल, ये मत सोचना कि हमें एक में ही आ जाएगा. अभी बहुत सारी न्यू टर्म्स आएंगी न्यूमेरिकल्स में.
क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन किया, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है। राइट ऑन इट, असाइनमेंट 1 नेशनल इनकम। Happy right on the assignment. National income assignment will go assignment 1. This is my mistake. मैं मैम को टॉपिक बताना भूल गई। Who left the class? बच्चों, once you will learn it, you will enjoy doing all these numericals. But concept अपना याद रखना, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है एंड वेरी स्कोरिंग। बोलो बेटा, सेकंड का somebody has done second question? Nandini, Priya, मम्मी एक मिनट। हाँ बलप्रीत हो गया, फर्स्ट हो गया बच्चे 41,200। बेटा सेकंड क्वेश्चन हो गया? नहीं मैम कर रहा हूँ। शो मी योर रजिस्टर। So here indicate given we have to find GNP, net is offset plus tax plus material minus net. हाँ तो तूने ये नहीं किया क्या? Factor income from abroad to rest of the world. So 400 minus 600, so it will be 200 minus negative 200 आ रही है इनकम। IT 13 और ठीक है, तो इसको चेंज कर, minus 200 कर, then again 41,000 only. This is 40। हाँ तो 40 में से बच्चे माइनस करना 1200 माइनस करेगा ना, तो 38,800 ही आएगा। योर आंसर इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन आंसर इज 38,800। नेक्स्ट, कीप ऑन डूइंग नाउ। That is depreciation. I have told you. Consumption of fixed capital is the other name for depreciation. What we have to calculate? अच्छा, depreciation निकालना है, दोनों नोन है ना, तो इस क्वेश्चन के अंदर इट्स अप टू यू, किसी एक को नोन ले लो, किसी एक को अननोन ले लो। ठीक है, तुमने यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, जिस मर्जी को नोन ले लो, जिस मर्जी को अननोन ले लो। जहां पे भी डेप्रिसिएशन आएगा ये सारी वैल्यूज डाल देना, सिर्फ एक डेप्रिसिएशन बच जाएगा, इधर उधर ले जाके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, वैसे हो जाएगा। किसी एक को नोन ले लो, किसी एक को अननोन ले लो, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। मैम 38,800 है ना? यस बेटा 38,800। बच्चों इन क्वेश्चन नंबर 3 both are given, ठीक है, and we have to find consumption of fixed capital. Consumption of fixed capital is depreciation, I told you. Now in this question consider one term as known and other term as unknown. बाकी सारा प्रोसेस सेम है, किसी एक को, तुम्हारी मर्जी है, किसी एक को नोन ले लो, किसी एक को अननोन ले लो, वही सारे चेंजेस करो, you will get a term depreciation there,
बाकी सबकी वैल्यूज इवैल्यूएट कर देना, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, देन लाइक अ लीनियर इक्वेशन सॉल्व द टर्म। और जिसको नहीं समझ आए मुझे बता देना, आई डू इट ऑन द बोर्ड। Yeah. What is the amount for depreciation? 1900. आ गया तेरा मनप्रीत? मैम डेप्रिसिएशन क्या है? बेटा 1900। ठीक है सर? मेरा तो माइनस में आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा है? यस मैम। फिर कोई मिस्टेक की है, माइनस में नहीं आएगा डेप्रिसिएशन। माइनस क्या 1900 होता आ था? रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, नॉट पॉसिबल। देख कोई चेंजेस करते टाइम तो नहीं गलती की हुई? Yes, मैम ये ma'am. थर्ड में, हाँ इशिका बोलो। मैम थर्ड में क्या करना है? थर्ड में इशिका दोनों टर्म्स गिवन है ना? यस किसी मैम। एक टर्म को नोन साइड रख दो, किसी एक टर्म को अननोन साइड पे रख दो। ठीक है? मैम ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज द अदर नेम फॉर डेप्रिसिएशन इशिका। मैंने बताया था ना, अभी लिखवाए थे ना दो नाम, यस मैम। current replacement cost and consumption of fixed capital. So consumption of fixed capital means you have to find depreciation here. तो बच्चे कुछ नहीं देख करना, लिया मैं। देख लिया फिर भी गलत आ रहा है? ओके, माइनस में ही आ रहा है। नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल। डेप्रिसिएशन can't be negative first. You have already studied an account. It can't be negative. यस मैम। हाँ, नफिया नेगेटिव आता तो मैं मानती कि नफिया आ रहा है नेगेटिव, दैट कैन बी पॉसिबल, बट डेप्रिसिएशन कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। टर्म बोलना क्या है? व्हाट इज गिवन? दोनों चीजें गिवन है ना? क्या क्या गिवन है? एनएनपी एट एफसी। फर्स्ट तूने भी यही लिया नोन? यस मैम। अननोन साइड बोल के जीडीपी एमपी। जीडीपी एट एमपी। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है ग्रॉस पे जाना है। डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? प्लस। यस मैम। नेशनल से डोमेस्टिक पे माइनस नफिया, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे प्लस नेट। अब जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू एनएनपी एट एफसी प्लस डैश माइनस नफिया प्लस नेट। जीडीपी एट एमपी की वैल्यू बोल। 5000। 5000। एनएनपी एट एफसी बोल। 4000। 4000। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है नफिया बोल। 300। नफिया 300 है पॉजिटिव। नेट है 300 दो। नफिया कितना है? पॉजिटिव। हाँ फर्स्ट 1200 है नफिया। अच्छा नफिया 1200। यस। हाँ तो बस ये आ गया 1000। ये डेप्रिसिएशन तूने एडजस्ट किया, ये तेरा आ गया 1200। 900 माइनस अब 900 मैंने दूसरी प्लस साइड 90। 4000 ले लिया। अच्छा ठीक है, 1900 आ रहा है पॉजिटिव। कैसे लगे न्यूमेरिकल्स? अच्छे कि नहीं? हाँ
साक्षी बैठी है, साक्षी को कौन सा भाई सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस में गलती। मैम फोर्थ का मैम 10,600 वर्कशीट जो है। हाँ बेटा, ये प्रिया बोलो पहले तुम। मैम फोर्थ का 10,600 है NIT। फोर्थ का यस मैम। 10,600। हाँ यस ठीक है। मैम। हाँ इशिका बोलो बच्चे। मैम वर्कशीट शो हो रही है। वर्कशीट शो हो रही है बेटा? यस हाँ मैम। बेटा हो रही है, यस मैम। हो रही है इशिका। देयर माइट बी नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड बच्चे। एक बार मैम अपना वीडियो ऑन ऑफ करो। All the terms. These all are the aggregates of national income. हाँ इशिका Excuse वही me, शो ma'am. बेटा। यस इसे मैम एग्जाम्पल 4 के अंदर GNP एट MP की वो क्या है वैल्यू? एग्जाम्पल 4 क्या वैल्यू है जीएनसी एट एमपी की? 17,000। 17,000। यस मैम, कॉमा गलत लगा। शो मी बोलती। Yes, बच्चे it is 17,000. No, you have considered. मैम हो गई शो। Nandini, it is 17,000 बच्चे। ओके मैम, थैंक यू। Okay. मैम एक बार फिफ्थ एग्जांपल बता दो। हाँ बोलो। मैम एक बार फिफ्थ एग्जांपल बता दो। We are fifth. यस Fifth मैम। में NDPA टैक्सी given है, यस मैम। तो 1 by 1 सारी एग्रीगेट कैलकुलेट करने हैं बेटा। ओके मैम। कुछ नहीं होगा उसका। देख, अगर हम लोग नेट और नेट है तो जैसे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कैंसिल हो जाते हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे ना, सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल को चेंज करके चेंज हो रहे हैं। फैक्टर कॉस्ट है उसे भी चेंज नहीं करेंगे, तो सिर्फ एक कंपोनेंट चेंज होगा, डोमेस्टिक और नेशनल का। ठीक है, आज मुझे जल्दी क्लास होनी है ना, कुछ थोड़ी देर बोलती हूँ। बच्चों प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द असाइनमेंट। मैं ग्रुप पे इसके आंसर्स डाल दूंगी, ठीक है? आप लोग प्लीज वेरीफाई कर लेना अपने आंसर।
Have you all taken the screenshot of the page? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, मैं ना Yes, next ma'am. page show कर रही हूँ so that you can try all those questions at home. प्रियंका मैम. एक्सक्यूज मी मैम अगर सब्सिडी हाँ हाँ इशिका बोलो. मैम अगर सब्सिडीज गिवन ना हो तो क्या जीरो लेनी है? हाँ, take it as given. प्रियंका मैम. प्रियंका मैम. नेक्स्ट पेज शो करना. How many questions are there? मैम फोर्थ का आंसर क्या है? 12. हाँ, फर्स्ट या सर बोल भी गए थे ना, आज जल्दी ओवर करना मुझे. 12 किसका आंसर पूछा था फर्स्ट? फोर्थ का. फोर्थ का आंसर क्या? 10,600. 10,600. ओके मैम. सेकेंड पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और ये क्वेश्चन प्लीज कंप्लीट कर लेना. विल टेक डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास. Okay, ma'am. Why you all are leaving the class? Have I told you to leave the class? Geetal, please be regular in your classes with it. It's a humble request. There is a flow of questions, so please don't miss any topic. Okay, do complete your assignment. Bye everyone. बाय मैम. Bye beta. Thank you, ma'am. एक्सक्यूज मी Okay. हाँ इशिका बोलो. बोलो इशिका. मैम वो मैंने पूछना था जैसे कि यहाँ पे ना फर्स्ट 7th क्वेश्चन में एमपी यहाँ पे एमपी नॉन साइड में भी है, एमपी अननोन साइड भी है, तो हाँ, मैं तो पहले उनका एफसी कुछ वाला नहीं करेंगे. निकाल लूं? नहीं 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 नहीं, पहले जीडीपी निकालो. जीडीपी ही निकालो इशिका. इसमें हाँ वो डीपीएमटी को चेंज क्रैक नहीं हो रही करेंगे है। बच्चे. इसमें जीडीपी ही निकालना पड़ेगा पहले. तुम इसमें सिर्फ ग्रॉस और नेट का डिफरेंशिएशन करोगे, बाकी किसी चीज को टच नहीं करना. जो सेम है उसको हाँ वैसे ही जो रहने सेम देना। है, हाँ दे विल रिमेन एज इट इज. बट जो सेम नहीं है सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स को चेंज करना है. ठीक है. ओके यस Okay, मैम. Okay. Do try your questions. Bye. Bye. Take care.